Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for competitive exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, with reference to Muletti consider the following statements, and the correct answer is option number 3 and 4, which is it has a sweetened taste due to presence of glycerin, and option number 4, which is Himachal Pradesh became the first state to have organized cultivation of mulethi. So let's see why the other options are wrong here. So what option first is saying here that it is a fungus grown in the foothills of Himalaya? Ji nahi. It is a perennial herb which grows in the temperate zone. Alright, that is why this option is wrong. Option 2 is saying it is endemic to India. So the licorice plant is herbaceous perennial legume which is native to Western Asia, North Africa and Southern Africa, and it is not at all endemic to India. And last is the option number fifth, which is saying that India is one of the top exporter of mulethi. No, mulethi basically grown in mainly in Afghanistan, जबकि बहुत ही माइनर सा प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और इंडिया जैसी कंट्रीज करती हैं. इंडिया बेसिकली 8047 टन लिकरिस import करता है from the Afghanistan itself. So now you know how UPSC gonna confuse you in the examination. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which is talking about consider the following statement with respect to संसद रत्न award. So here the correct answer is option number A, which is the award was instituted based on the teachings of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Yes, it is correct. It was basically instituted in 2010. आगे बढ़ते हैं. Why option number 2 is wrong? Because here they are saying the jury committee of the award consists of parliament and civil society alike and given by the government of India. जी नहीं. The Sansad Ratna award press released mention that its jury committee comprises eminent parliamentarians and members of civil society. So this award are not given by the government of India, though over the years its jury member have included individuals in the government. The awards were instead the brainchild of K. Srinivasan, that you should also remember here, a communication strategist who founded the Prime Point Foundation in 1999. इम्पॉर्टेंस इसकी क्यों आ जाती है? क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट who will confer the Sansad Ratna award. That is why it is very very important. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first news is very important because it is talking about rights at the center, और यहाँ बात की जा रही है चाइल्ड की कस्टडी के बारे में. देखिए, जब भी आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का अगर डिवोर्स का इशू आ जाए या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा हमें देखने मिलता है वो है चाइल्ड की कस्टडी के बारे में. वॉट हैपन कि यहाँ पेरेंट्स कपल्स जो हेड करते हैं टुवर्ड्स द डाइवोर्स, दे बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि चाइल्ड की जो पैटर्निटी है, ठीक है, वो किस ग्राउंड पे यहाँ पर डिसाइड की जाएगी कि कौन सा कपल या कौन सा जो व्यक्ति है इस कपल में से उसकी मदर या फादर कौन इसकी कस्टडी यहाँ पर लेंगे. इसी तरीके से दूसरे केसेस भी होते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे का जो कस्टडी है वो क्वेश्चन हो जाता है कब, जब अगर फादर यहाँ पर बच्चे का कि यहाँ पे उसका फादर कौन है इस पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देते हैं. इन दैट केस इसको पैटर्निटी जो यहाँ पर है वो एक टेस्ट डीएनए टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड हो जाती है, विच सुप्रीम कोर्ट हैड ऑलरेडी सेड कि नो दिस शुड नॉट बी डन. ये एक लास्ट स्टेप होना चाहिए, नॉट द प्राइमरी स्टेज. वाई? बिकॉज चाइल्ड हैज़ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी. You cannot just come and deteriorate its right of its fundamental right. So what happened here कि सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल देता है कि भाई एक बच्चा जो है it cannot, it is not a that particular child is not a mechanical subject फॉर डीएनए टेस्टिंग. चाहे कोई भी केस आ जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है, डीएनए टेस्टिंग की बात की जाती है. क्योंकि अगर आप इसके देखेंगे तो इस डीएनए टेस्टिंग और इन सारी सिचुएशन की वजह से जो ट्रॉमा है बच्चे के ऊपर, जो इमोशनल ट्रॉमा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है.
वहीं उसकी जो अपब्रिंगिंग है, सेफ़ और सिक्योर अपब्रिंगिंग, वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट उसके जो राइट है, जो राइट टू प्राइवेसी है, उसका तो हनन हो ही रहा है। एंड इन दैट case what Supreme Court is observing कि no, this should not be done, and this is the pathetic thing that we are doing nowadays. Also, the Apex Court directed the other courts to acknowledge that children must not be regarded as the material subject, and that they be subjected to forensic DNA testing only as the last resort. ठीक है, हर बार ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अगर हम बच्चों की बात करें तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन उनका जो बचपन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसी के लिए आप देखेंगे इन 1959 जो हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली था, इन्होंने अडॉप्ट किया था द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड हेयर, in which the first charter of its kind, which ensures that basic right to all children below 18 years, with these words, mankind owes to the child to the best it can give. So this is something which is India is signatory, and by doing this DNA testing, by allowing this kind of practice in every single situation, in every normal divorce or dispute case, what we are doing, we are abusing the child, we are giving the child a mental trauma. Also what will happen कि जब बच्चे इस तरीके से अपब्रिंग होते हुए आपको दिखाई देंगे तो जो उनका नेचर हो जाएगा, ठीक है, वो अब्यूज़िव देखने लगेगा, आपको वायलेंट देखने मिल जाएंगे, और इसकी वजह से आपको जो अपकमिंग आपका जो एक जनरेशन यहाँ पर बनने वाली है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हुई नज़र आएगी। So this particular article is again very important for GS paper 3 economy. देखिए, बात की जाए अगर तो ये पूरा आर्टिकल रिलेटेड है with the UPI and the pay now. Now you will be amazed कि what is pay now, that we have already discussed in our previous videos. देखिए, अभी की डेट में क्या हुआ है, February 21 की बात है कि इंडिया और सिंगापुर ने एनेबल कर दिया है इंस्टेंटेनियस क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस using the unified payment interface which is the UPI, और यहाँ से pay now mobile application on their phone in India and in Singapore respectively, what people can do, they can send money at the immediate time, at the real time from one place to another. अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन आपको देखने मिलेगा। With this, the start of cross-border link for real-time person-to-person money transfer can be seen between South Asia's largest economy. और अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए जब बहुत सारे बैंस आपको कंट्रीज़ के ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर उठती हुई नज़र आ रही हैं, इन दैट सिनेरियो जब रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र की बात यहाँ पर आती है तो यूपीआई गिव दैट फैसिलिटी वेयर यू कैन डू इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र. सो नाउ whosoever is studying, अगर आपके रिलेटिव्स रह रहे हैं, if somebody is studying or living in the Singapore or and they are receiving remittances from a family member who are working in the Southeast Asian cities. Now what they have to do, सिर्फ उनको एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है which is the Pay Now, and they can transfer money very easily. अब देखिए यहाँ से एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है, एक बहुत अच्छी चीज़ आप समझिए जिसे हम बोलते हैं हवाला चैनल, ठीक है। अब देखिए होता क्या है यूजुअली कि जब आप बड़े बड़े अमाउंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं, या जब आपने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको विड्रॉ कराने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस से लोगों को गुजरना पड़ता है। रिजल्टेड इनटू पीपल फाइंड सम काइंड ऑफ वे, ऐसी फैसिलिटीज़ ढूंढते हैं जहाँ से उन्हें क्या करना पड़े, ये हाई कॉस्ट जो उनकी एडिशनल यहाँ पर लग रही है ये ना देना पड़े और ये ईजी चैनल के थ्रू मनी ले लें, विच मीन्स यहाँ हवाला जैसी सिचुएशन हमें देखने मिलती है। सो ये जो लिंकेज हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, बिकॉज नाउ व्हाट इट विल डू बेसिकली इट विल एनेबल द इंडिविजुअल कि वो बहुत ही जल्दी और सुरक्षित रूप से जो अपनी मनी है, जो रिमिट मनी है, उसको लोगों अपने लव्ड वन तक पहुंचा सकते हैं, और वहाँ पे रहने वाले लोग बिना किसी हैसल के, बिना किसी एक्स्ट्रा अमाउंट के, एडिशनल चार्जेस के, rather than going to the bank branches and being into queue and do all the processes again, they can easily transact the money.
ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो रिस्की और हवाला सिचुएशन है पहले तो ये ख़त्म होगी, हायर कॉस्ट हमें यहाँ से ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर हम बात करें ये जो टाई अप हुआ है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वाइडर रीजनल एफर्ट्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र। होगा क्या यहाँ से, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की, किसी भी मर्चेंट की, ठीक है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। साथ ही जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नमेंट सेटलमेंट है करेंसी को लेके, वो भी यहाँ पर हमें ख़त्म होते हुए देखने के लिए नज़र आएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि जो एक प्री डोमिनेंस बना रखा है यूएस डॉलर ने मार्केट में अपना, ये डॉलर की प्रोमिनेंसी को यहाँ पर वीक कर देगा। सो ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, बात यहाँ पर अगेन बजट इज़ अगेन इन द न्यूज़। यहाँ पर बात की जा रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, हो क्या रहा है, अगर आज की डेट में हम देखें तो इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो हमारे जीडीपी रेशियो का इट इज़ ओनली 0.7%, विच इज़ वेरी वेरी लो जब हम इसे कंपेयर करते हैं दुनिया की दूसरी मेजर इकनॉमी से। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इट इज़ मच बिलो थ्रू द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 1.8%। अगर पूरी दुनिया में देखें तो जो एवरेज खर्च किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दैट इज़ 1.8%, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया हमारे यहाँ जीडीपी रेशो का 0.7% और उससे भी कम इन्वेस्टमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। अब जो मेन रीज़न है लो इन्वेस्टमेंट का इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज़ बाय द कॉरपोरेट सेक्टर। ठीक है, कोई खास आपको यहाँ पर इनिशिएटिव्स नहीं देखने मिलेंगे। गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट अलॉट कर देती है कि ओके दिस इज़ द अमाउंट, इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट यू हैव टू डू ऑल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। और इस चीज़ को इस तरीके से समझिए, किसी भी काम को जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सो जो बेस बनाता है दैट इज़ R&D। Without proper research and development, how you gonna initiate the work, how you gonna execute any particular work? But in that case अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो बेसिकली बात ये की जा रही है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है दैट शुड गिव अ गुड अमाउंट। सो व्हाट फर्दर द आर्टिकल इज सेइंग कि अगर हम करंट सिस्टम के बारे में बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है विच इज़ द NSTMIS, यू कैन ऑल्सो सी इट हेयर। ये एसोसिएट होता है बेसिकली किससे, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये एजेंसी है जो कंप्लाई करती है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और R&D। GERD एक तरीके का स्टैटिक होता है, एक तरीके का डेटा होता है जिसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द इन्वेस्टमेंट। बट नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर, ये जो GERD सिस्टम आप देखेंगे या नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो ये जिस जेड सिस्टम का ये उपयोग करते हैं, ये मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट इज़ अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, but it is not clearly indicating anything about the private investment here. सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो NSTMIS जो है वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कि वो रिकॉग्नाइज करे R&D यूनिट्स को और पावर करे डेटाबेस को फॉर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। बट यहाँ पर देखिए, इसके पर्पस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए तो DSIR की लिस्ट में नॉट हैव मैनी ऑफ द एक्चुअल R&D परफॉर्मेंस फॉर टू रीजन्स। पहला एक कारण हमें समझ में आएगा कि फर्म विच कंसिडर गवर्नमेंट इंसेंटिव एज नॉट अट्रैक्टिव इनफ or that are sensitive about sharing their critical information with the DSIR may not be inclined to register themselves with the DSIR. दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो it may be difficult for R&D firm in service such as software and R&D services to meet the requirement of having separate infrastructure for R&D to distinguish it from their usual businesses. And with all this हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करते हैं व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेटा। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, इंडिया को अपना जो R&D स्टैटिस्टिक्स है इसको पूरी तरीके से शिफ्ट करने की आवश्यकता है, एक नए इकोसिस्टम लाने की आवश्यकता है जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मेजर्स के बारे में भी बात करें रादर देन अलोन टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल्स। Here one should also need to be included
ये जो R&D डेटा है ये सिर्फ आपका गवर्नमेंट फोकस्ड नहीं होना चाहिए, रादर इट शुड ऑल्सो बी फोकस्ड ऑन द private investment. Then only we will get the clear cut idea about the India growth and all the research and development. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. ऑल्सो अगर आप अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. वी हैव इंटायरली डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ फॉर UPSC एंड MPPSC. सो डू विजिट राउज अकेडमी एट भोपाल ब्रांच एंड इंदौर. साथ ही आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो दो बहुत ही छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. फर्स्ट इज मिनिस्ट्री सीक्स रिपोर्ट ऑन काजीरंगा राइनो एस्टिमेशन. सो वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट दी राइनोज है. देखिए जब राइनोज की बात की जाती है तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो हमें देखने के लिए मिलती हैं. वाइट ब्लैक राइनो जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, वाइट एंड ब्लैक राइनोज इन अफ्रीका, और ग्रेट वन हॉर्न्ड जावा एंड सुमात्रन राइनो स्पीशीज़ इन एशिया. अगर हम इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो इनको रेड लिस्ट में यहाँ पर डाला गया है. ब्लैक और वाइट राइनो जिसको मैंने आपको बताया, सिंस अगर हम ब्लैक राइनो की बात करें तो इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी ग्रुप में डाला गया है, और वाइट राइनो की बात करें तो इसको नियरली थ्रेटेंड की स्पीशी में डाला गया है. वहीं वाइट राइनो के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी ज़रूरी है कि रिसर्चर्स नाउ हैव क्रिएटेड एन एम्ब्रियो ऑफ द नदर्न वाइट राइनो बाय यूजिंग द IVF टेक्नोलॉजी. सो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वहीं अगर हम वन हॉर्न राइनो की बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं. जावन राइनोज की बात करें तो दे कम्स अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी, एंड सुमात्रन राइनोज ऑल्सो कम्स अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वन हॉर्न राइनो जो कि मिलते हैं इंडिया में. ठीक है, इंडिया में ओनली द ग्रेट वन हॉर्न राइनोज आर फाउंड एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द इंडियन राइनो विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज. सो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये देखिए बहुत ही छोटी जगह पे आपको देखने मिलेंगे, स्पेशली इनटू द इंडो नेपाल तराई रीजन जो है, नॉर्थ वेस्ट बंगाल का जो रीजन है और असम का जो रीजन है, वहाँ आपको ये राइनोज देखने के लिए मिलेंगे. बेसिकली अगर हम बात करें तो ये मेनली आइडेंटिफाई किए जाते हैं असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में. वहीं अगर हम असम की बात करें तो इट हैज़ एस्टिमेट ऑफ 2640 राइनोज in the 4 protected areas which are the Pabitora Wildlife Reserve, Rajiv Gandhi Orang National Park, Kaziranga National Park and the Manas National Park. चलिए, so now let's understand about the Kaziranga National Park, जहाँ से हमें दूसरा सवाल देखने के लिए मिल सकता है. अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये लोकेट है असम में. ठीक है, और ये कवर करता है लगभग 42,996, दैट इज़ 42,996 हेक्टर एरिया. अगर हम इसके लीगल स्टेटस की बात करें तो देखिए इसे नेशनल पार्क बनाया गया था 1974 में, और 2007 में इट बिकेम द पार्ट ऑफ द टाइगर रिजर्व. इंटरनेशनल स्टेटस के बारे में बात करें तो इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया था इन 1985, एंड दैट इज़ बाय द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ आपको देखने मिल जाएंगी जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन हॉर्न राइनोज. अदर देन दैट यू विल ऑल्सो फाइंड रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो एट्सेट्रा. ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, एक सीजनल रिवर है, सीजनल वाटर बॉडी है, दैट इज़ धिपुलू रिवर दैट रन्स थ्रू इट. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड विद दी वीट कल्टीवेशन. देखिए बात क्या की जा रही है, इफ़ यू हैव नोटिस तो इस बार जो समर सीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गया है. रिजल्टेड इनटू कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो वीट का कल्टीवेशन है, जो वीट क्रॉप्स है, इनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है. बट जो हमारे यहाँ का इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दे हैव मैंशनड इट क्लियरली कि नो देयर वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ
नेगेटिव इम्पैक्ट की समझ के जल्दी आने की वजह से जो हमारी वीट की क्रॉप है इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं देखने के लिए ऐसी मिलेगी. सो नाउ what we must understand or what we should read, it's about the wheat and it's the geographical condition. सो वीट की जब हम बात करते हैं तो यू शुड रिमेंबर, पहली बात तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये क्या है, एक रबी क्रॉप होती है जिसको सितंबर और दिसंबर के बीच में क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया. इट क्रॉप ग्रोन्स बिटवीन दी सितंबर एंड दिसंबर, और इसको जो हार्वेस्ट किया जाता है वो किया जाता है फरवरी से मई के बीच में. देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं, बट प्री में जब आपको क्वेश्चंस देखने मिलते हैं वो ऐसे ही आते हैं, है ना. तो इसको जो सोन किया जाता है वो कब से कब किया जाता है, सितंबर से दिसंबर, और हार्वेस्ट किया जाता है फरवरी से मई में. अगर हम इस क्रॉप की बात करें तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल क्रॉप होती है. अगर इसको देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन और साथ ही ये टेम्परेट जोन के एरिया में भी बहुत आसानी से ग्रो हो सकती है. इनफैक्ट अगर हम बात करें तो दो कोल्ड ट्रैक्ट्स होते हैं नॉर्थ के आगे भी, अगर हम चले जाएं वहाँ पे भी हमें गेहूं की खेती आसानी से देखने के लिए मिल जाती है, इवन बियॉन्ड दी 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड. वीट के बारे में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ये टॉलरेट कर सकता है सीवियर कोल्ड, सीवियर स्नो, और वापस से अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से वार्म टेम्परेचर या जैसे ही वार्म वेदर या स्प्रिंग आएगा वापस से ही अच्छा कर देता है. वहीं अगर हम बात करें सी लेवल की तो ये 3300 मीटर सी लेवल की ऊंचाई से भी ग्रो किए जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन देखिए हर क्रॉप की कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. तो अगर हम वीट की बात करें तो जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज यहाँ पर देखी गई है दैट इज़ 20 to 25 डिग्री. ठीक है, वहीं अगर हम इनके जर्मिनेशन पीरियड की बात करें तो इनका जो जर्मिनेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है 5 to 35 डिग्री में. ठीक है, बेसिकली इनको जिस तरीके के एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ द कूल मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रोइंग पीरियड फॉलोड बाय द ड्राई एंड द वार्मर वेदर टू इनेबल द ग्रेन टू रिपन प्रॉपरली. ठीक है, वहीं अगर हम इनकी बात करें तो ये जो जर्मिनेशन होता है ये इनकरेज होता है जहाँ पर आपको ऐसे एरिया में जो कि वार्म है, डैम क्लाइमेट है, एंड दे आर बेसिकली नॉट सूटेड फॉर द वीट ग्रोइंग एरियाज. दिस यू शुड कीप इन माइंड. वहीं अगर हम बात करें तो सॉइल्स देख लेते हैं तो इनके लिए क्ले और लोमी सॉइली टेक्सचर बहुत अच्छा होता है जो इनके लिए एक मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है. लास्टली अगर हम रेनफॉल की बात करें तो 75 से लेके 100 सेंटीमीटर बारिश इनके लिए एक अप्रोप्रिएट बारिश का काम यहाँ पर करती है. चलिए, एट द एंड वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो देखिए आपको उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, पंजाब देखने के लिए मिल जाएगा, हरियाणा देखने के लिए मिल जाएगा, देन कम्स दी मध्य प्रदेश, देन दी राजस्थान, एंड लास्टली बिहार एंड गुजरात. सो दीज आर दी फ्यू टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं प्रीलिम्स में. चलिए आगे बढ़ते हैं, and it's a quiz time, and first question is what is the name of the indigenous data link communication developed by the Indian Navy. And next question is Maunela Roka Botier has appointed as the first female prime minister of which of the following country. So you all know the drill. Correct answer आपको comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the right answer. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.